الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے فرزند سے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں، ہوتا تو یہ ہے کہ قربان جس کو ہونا ہے اس کو آدمی دلاسا دے کہ تم فکر مت کرنا، اللہ کی راہ میں تم جا رہے ہو، تمہاری یہ جان ضائع نہیں جائے گی، لیکن قربان جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت پر ذبح کرنے والا دلاسا نہیں دے رہا ہے، جس کو ذبح ہونا ہے وہ دلاسا دے رہا ہے۔ ابو جان، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قربانی کا مہینہ جب آتا ہے، مسلمان بڑے جوش اور خروش کے ساتھ قربانی کے جانور خریدتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو بے شک وہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہی مسلمانوں کی جب عام زندگی کو آپ دیکھیں گے تو نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ کام کثرت سے کرتے ہیں جس سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے۔ تم جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، اس کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے۔ اگر کچھ اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے تو وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، اور اللہ رب العالمین وہی چاہتا ہے۔ نماز وہ ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ آپ کروڑوں کو جانور قربان کر دیجئے، اگر آپ جمعہ والے نمازی ہیں، آپ کی اس قربانی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے لاکھوں نے کروڑوں کا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اگر آپ ریاکاری کے لیے وہ کر رہے ہو، میرے بھائی، حضرت ابراہیم کی نافرمانی ہے، محمد رسول اللہ کی بھی نافرمانی ہے، قرآن کی بھی نافرمانی ہے، اللہ کی بھی نافرمانی ہے۔ اللہ تمہاری تمام عبادتوں کو، تمہاری تمام قربانیوں کو تمہارے منہ پر مار دے گا، اور نہ صرف مار دے گا، دنیا کے اندر وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ قیامت کے دن وہی ریاکاری آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ جہنم میں داخلے کا سبب بھی بن جائے۔ آپ کی شادیوں کے اندر، آپ کے نمازوں کے اندر، آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، تمام چیزوں میں آپ کا اسلام نظر آنا چاہیے۔ یہ بات پتہ چلنا چاہیے کہ یہ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، یہ آخری نبی کے امتی ہیں۔ جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے نبی کتنے اچھے رہے ہوں گے۔ کہ قربانی بے شک اللہ رب العالمین کی ایک عظیم عبادت ہے، لیکن آپ کی قربانی تب قبول کی جائے گی جب آپ کی قربانی میں اخلاص ہوگا، جب آپ کی زندگی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرے گی۔ آپ کے ہاں جو کام کرنے والا مزدور ہے، آپ اس کی 2-3 مہینے کی سیلری کھا کر کے بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں 10 لاکھ کا 2 لاکھ کا بکرا قربان کر دیا اللہ قبول کر لے گا۔ نہیں، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کا حق ہے، جو آپ کے ہاں مزدور کرتا ہے، اس کی مزدوری کی ادا کریے، اور ان ساری چیزوں کو آپ اپنائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو قبول کرے گا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ رب العالمین ہے،
जो मेरा, आपका और इस पूरी कायनात का अकेला खालिक, मालिक, राज़िक और पालनहार है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूल पर कि जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह की रसालत को, अल्लाह के दीन को अपनी अपनी उम्मतों तक मुकम्मल अमानतदारी और दयानतदारी के साथ पहुँचाया। खुसूसन नबूवत की आखिरी कड़ी ताजुदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अतहर पर। मोहतरम हाज़रीन, कुर्बानी का महीना करीब है, इसलिए आपको तो कोई शुबहा भी नहीं होगा कि किस उन्वान पर गुफ्तगू होगी। मोहब्बत, इताअत, वफादारी पर अगर कोई शख्स बात छेड़े और गुफ्तगू का आगाज़ करे और उसमें अगर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा ना किया जाए, कुर्बानी की बात हो, जानिसारी की बात हो, उसमें सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर तज़किरा ना किया जाए, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा अगर ना किया जाए तो वो बात अधूरी रह जाएगी। क्योंकि उन्होंने, उनकी पूरी ज़िंदगी को जब आप देखेंगे तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगियों को आजमाइशों से भर रखा था और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर इम्तिहान में, हर आजमाइश में मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। बिल्कुल 100 में से 100 नंबर ला करके कामयाब रहे। इतना कामयाब रहे और अल्लाह ताला के हर हुक्म पर, अल्लाह की हर आजमाइश पर वो इतना कामयाब रहे, इस कदर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में अपनी कुर्बानी पेश की। और वो ऐसे मुसलमान थे, अल्लाह पर ऐसे ईमान लाने वाले थे कि जहां इंसानी अक्लें और इंसानी अक्लों के तमाम फलसफे पीछे रह जाते हैं और इंसान हैरान और परेशान हो जाता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है, कोई किसी का इतना फर्माबरदार कैसे हो सकता है, कोई किसी के बात पर इस कदर अमल कैसे कर सकता है। वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके दिखाया। बचपने के अंदर थे, जब उनको नबूवत मिली, जब उनको अल्लाह ताला ने ये समझ दिया कि हमारे आबा और अजदाद और हमारे इलाके और गांव के लोग जहां आप रह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने आलमी बगावत बुलंद किया, लोगों को तौहीद की दावत दी, बाप के घर से निकाले गए, बाप की गालियां सुनी, ताना सुना, आपको आग में डाला गया, आपकी इज्जत और आबरू पर हमला हुआ, एक लंबी मुद्दत तक औलाद से महरूम रहे, अल्लाह ताला से दुआ करते रहे। अल्लाह ताला ने फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम के जरिया अल्लाह ने आपकी दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शा। फिर जब वो नन्ही औलाद, नन्ना मुन्ना बच्चा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके यहाँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ जब पैदा हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे बड़ी एक आजमाइश रखी कि अपनी बीवी को और अपने बच्चे को मक्का की वादी में छोड़ करके चले आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माथे पर शिकन तक ना आई और अल्लाह के इस फैसले पर उन्होंने सोचा भी नहीं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म दिया था उसको कर गुजरे। फिर जब वो औलाद जवानी के दहलीज पर पहुंचने वाली थी, जवानी के दहलीज पर पहुंचने ही वाली थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और इम्तिहान लेना चाहा कि जिस बच्चे के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने सालों तक दुआएं किया, इतने सालों तक सब्र किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको औलाद दिया, उसी औलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बह करने का हुक्म दिया, कुर्बान करने का हुक्म दिया। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माथे पर वहां भी शिकन नहीं आई और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था उसको कर गुजरने के लिए तैयार हो गए। बल्कि मैं आपको बताता चलूं, जब गुफ्तगू छिड़ गई है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने फर्जंद से कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, तुम इसके बारे में क्या कहते हो। अगर मैं आपको ये बात समझाऊं, होता तो यह है कि कुर्बान जिसको होना है उसको आदमी दिलासा दे कि तुम फिक्र मत करना, गम मत करना, परेशान ना होना, अल्लाह की राह में तुम जा रहे हो, अल्लाह की राह में तुम्हारी जान जा रही है, अल्लाह इसका अज्र देगा, कयामत के दिन अल्लाह ताला तुमको अच्छे लोगों में शुमार करेगा, तुम्हारी ये कुर्बानी, तुम्हारी ये जान जाया नहीं जाएगी, लेकिन कुर्बान जाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरबियत पर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं पर जिसको कुर्बान होना है वो कुर्बान करने वाले को दिलासा दे रहा है, ज़बह करने वाला दिलासा नहीं दे रहा है, जिसको ज़बह होना है वो दिलासा दे रहा है कि या अबती फअल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बू जान, आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, अल्लाह का जो फैसला है, अल्लाह की जो मर्जी है, अल्लाह की जो चाहत है, अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है आप कर गुजरिए, परेशान ना होइए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, कुर्बानी का महीना जब आता है, मुसलमान
मुसलमान बड़े जोश और खरोश के साथ बकरे खरीदते हैं, कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं, और बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कुर्बानी के जानवरों पर आपस में एक दूसरे पर फख्र भी करते हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को बेशक वो जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं मुसलमानों की जब आम जिंदगी को आप देखेंगे तो नाफरमानियों से भरी हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुश्मनी से भरी हुई है। वो काम कसरत से करते हैं जिससे हमारा रब नाराज होता है, जिसके करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन जंग का ऐलान करता है। जो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की बात है, मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत के अंदर इखलास की बात की है, नीयत सालिहा की बात की है कि तुम जिस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हो उसका ना गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है, ना उसका खून अल्लाह तक पहुंचता है। अगर कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचता है तो वो तुम्हारे दिलों का तकवा है, तुम्हारे दिलों की परहेजगारी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन वही चाहता है। लेकिन आज मुसलमानों की हालात को देखिए, उनके कॉलोनी में चले जाइए, उनके बस्तियों में देखिए, बड़े बड़े जानवर बंधे हुए हैं। यकीनन ये अच्छी बात है, नेकी की बात है, सआदत की बात है, खुशी की बात है, और ऐसा करना चाहिए। लेकिन उसी मुसलमान को अब जब देखेंगे, उसी कुर्बानी के नाम पर वो रियाकारी करता है, कुर्बानी को एक बड़ी इबादत समझता है, लेकिन वही मुसलमान मस्जिदों से गायब रहता है, नमाजों से उसको कोई मतलब नहीं है। जबकि मुसलमानों को यह पता होना चाहिए कि नमाज इस्लामी बुनियादों में से एक बुनियाद है। अगर आपने इस पिलर को ढा दिया तो आपका पूरा इस्लाम जाया हो जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को तो आपने याद रखा, लेकिन आप ये बात क्यों भूल गए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने उसी नन्हे मुन्ने बच्चे को मक्का की वादी में छोड़ करके आ रहे थे, उन्होंने अल्लाह से क्या कहा था, क्या दुआएं की थी? रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैर दी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। क्यों आबाद किया था? अल्लाह से क्या दुआ मांगी थी कि अल्लाह तेरे हुक्म पर, तेरी मर्जी पर, तेरे इज़्न पर अपनी औलाद को, अपनी ज़ुर्रियत को मक्का की वादी में छोड़ कर आ रहा हूं, तेरे घर के पास आबाद करके आ रहा हूं। अल्लाह कोई मकसद नहीं है, अल्लाह कोई इरादा नहीं है, मकसद बस इतना है कि अल्लाह ये नमाज कायम करें, ये नमाज पढ़ें। हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को तो आपने याद रखा, लेकिन हजरत इब्राहिम की नमाज को आप क्यों भूल गए कि अपने रब की बंदगी में किस कदर कुर्बान होने वाले थे? मेरे भाई और दोस्तों, मैंने नीयत सालिहा की बात की है, मैंने नीयत की बात की है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस कुर्बानी को अल्लाह ताला ने इतना क्यों पसंद किया? क्योंकि उनकी नीयत खालिस थी, उनकी मर्जी ये थी कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरा रब इसका अजर दे। और अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कुर्बानी को अजीम बना दिया, और रहती दुनिया तक हत्ता की उम्मत मोहम्मदिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुर्बानी को राइज कर दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करने का हुक्म दिया है। मेरे भाई और दोस्तों, नमाज की जब बात छिड़ गई थी तो मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूं और इस पर बात खत्म कर दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ने के लिए अपने बच्चों को, अपनी बीवी को वहां आबाद किया। और आपको यह पता होना चाहिए, कयामत के दिन हमारे और आपके आमाल के मुताल्लिक जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा तो नमाज का सवाल किया जाएगा। नमाज वो है जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। आप लाखों का जानवर कुर्बान कर दीजिए, आप करोड़ों को जानवर कुर्बान कर दीजिए, अगर आप जुमा वाले नमाजी हैं, अगर आप ईद बकरीद वाले नमाजी हैं, आपकी इस कुर्बानी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अल्लाह को नहीं चाहिए आपके ये जानवर, अल्लाह को नहीं चाहिए आपको ये कुर्बानी। अगर आप ये चाहते हो आपकी कुर्बानी कबूल हो, अल्लाह उसका अजर दे, तो मस्जिदों से भी अपना नाता जोड़ना पड़ेगा, पांचों वक्त नमाजों में आपको हाजिरी देनी पड़ेगी, अपने रब के सामने अपने पेशानी को झुकाना पड़ेगा, अपने रब को राजी करना पड़ेगा। मेरे भाई और दोस्तों, बात आ गई थी रियाकारी की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुर्बानी का खून नहीं पहुंचता। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर कोई चीज पहुंचता है तो वो है दिलों का तकवा, दिलों की परहेजगारी। आज मुसलमान अपने जानवर पर एक दूसरे पर फख्र करता है, मेरा जानवर इतने का है, तुम्हारा जानवर कितने का है, मेरा जानवर इतने का है। मेरे भाई, अगर आपकी उस इबादत के अंदर रियाकारी ने दखल दे दिया, आपकी इबादत जाया और बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा था, मैं अपनी उम्मत पर सबसे ज्यादा जिस बात से डरता हूं वो शिर्क असगर है। सहाबा ने पूछा था शिर्क असगर क्या है? आपने बयान फरमाया था रियाकारी है। अल्लाह ताला रियाकारों से कयामत के दिन कहेगा,
जाओ उन लोगों के पास जिनको दिखाने के लिए जिनकी खुशनुदी के लिए तुम रियाकारी किया करते थे, जाओ उनके पास और देखो तुम्हारे उस रियाकारी का अज्र है उनके पास, उस रियाकारी की जज़ा है उनके पास, उस रियाकारी का बदला है उनके पास। हरगिज़ नहीं है। आपने लाखों नहीं करोड़ों का जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। आपके दिलों के अंदर अगर फितना है, आपके दिलों के अंदर अगर फजूर है, अगर आप रियाकारी के लिए वो कर रहे हो, मेरे भाई हजरत इब्राहिम की नाफरमानी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी नाफरमानी है, कुरान की भी नाफरमानी है, अल्लाह की भी नाफरमानी है। अल्लाह तुम्हारी तमाम इबादतों को, तुम्हारी तमाम कुर्बानियों को तुम्हारे मुंह पर मार देगा, और ना सिर्फ मार देगा, दुनिया के अंदर वो कबूल नहीं की जाएगी। कयामत के दिन वही रियाकारी आपके लिए वबाले जान बन जाएगी, और हो सकता है वो जहन्नम में दाखिले का सबब भी बन जाए। वक्त खत्म होने वाला है। मैं आपको बस बता देना चाहता हूं, कुर्बानी का जब महीना करीब आता है तो बहुत सारे मुसलमानों में से वो लोग जो इस्लाम का लिबादा पहने हुए हैं, और बहुत सारे वो लोग जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जब मुसलमान ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में जानवर ज़िबा करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारा हर साल तकरीबन ये होता है, सोशल मीडिया पर वीडियोस चलते हैं, लिखी हुई तहरीरें चलती हैं कि इतना जानवर ज़िबा करने की क्या जरूरत है, माल जाया होता है, पैसा बर्बाद होता है। अगर वही पैसा आप किसी गरीब को दे दो, किसी का घर बनवा दो, किसी की शादी करा दो, किसी का इलाज करा दो, किसी का ये करा दो, किसी का वो करा दो, तो फलाने का भला हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेकियों का मुवाजना आप नेकियों से क्यों करते हैं? नेकियों का मुवाजना आप नेकियों से क्यों करते हैं? नेकियों का मुवाजना आप दुनिया से क्यों नहीं करते? ये जो कहने वाला है वो अपने ऊपर इस बात को क्यों नहीं लागू करता? क्या जरूरत है पक्के मकान में रहने की? आदमी फूस की झोपड़ी में भी रह सकता है, उसी पैसे से गरीब का वो मदद कर दे जो कुर्बानी से रोक रहा है। क्या जरूरत है महंगे मोबाइल इस्तेमाल करने की? क्या जरूरत है गाड़ी से चलने की? आदमी अपनी मंजिल पर तो ऑटो करके भी जा सकता है। आप वही पैसा गरीबों की मदद में क्यों नहीं लगा देते? और वही ये बात जो कहते हैं, जब आप उनकी शादियों को देखेंगे, जब आप उनकी खुराफातों को देखेंगे तो लाखों करोड़ों ऐसे लुटाते हैं जैसे पैसे की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। और मुसलमान भी इस नाफरमानी के अंदर शिकार हैं, उतने ही शामिल हैं जितना इस्लाम के दुश्मन शामिल हैं। आजकल आपने सोशल मीडिया पर एक बहुत वीडियो वायरल हो रही है, मेरे ख्याल से तकरीबन सब ने देखा होगा। 1,11,00,000 BMW जहेज में ऐलान करके इस कदर से दिया जा रहा है, आप सब ने मेरे ख्याल से देखा होगा। इस तरह से दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने बच्ची को बेचा जा रहा है और दामाद को खरीदा जा रहा है। क्या हजरत इब्राहिम की यही तालीम है? क्या कुर्बानी का यही पैगाम है? कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं है, कुर्बानी नाम है अपने ख्वाहिशात को ज़बह करने का, अपने नफ्स को मारने का। इस्लाम नाम है उस चीज का। अल्लाह अगर हुक्म दे दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर कह दे रुक जाओ तो फिर रुक जाओ, अगर आप हुक्म दे दें बैठ जाओ तो बैठ जाओ। आपका अगर हुक्म हो जाए चल पड़ो तो चल पड़ो, वहां सवाल और जवाब की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तब अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में ये समझ लीजिए आप कुर्बानी पेश कर रहे हैं, वरना जानवर तो कोई भी ज़बह कर सकता है, जानवर कोई भी ज़बह कर सकता है। असल कुर्बानी तो ये है कि आप अपने नफ्स को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दो। आपकी शादियों के अंदर, आपके नमाजों के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, आपके मामलात के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके खानदान के अंदर, तमाम चीजों में आपका इस्लाम नजर आना चाहिए। यह बात पता चलना चाहिए कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, ये आखिरी नबी के उम्मती हैं। जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके नबी कितने अच्छे रहे होंगे। वरना आज हमारे बुरे करतूतों की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने की वजह से, हमारे बुरे अमाल की वजह से हमको तो गालियां पड़ती ही हैं, हमारे नबी को भी बुरा भला कहा जाता है, हमारे रब को भी बुरा भला कहा जाता है। हमारे बुरे अमाल की वजह से बुरे करतूत हम करते हैं, गालियां हमारे रब को पड़ती हैं, गुनाह का काम हम करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हम करते हैं, गालियां हमारे रब को पड़ती है, गालियां हमारे नबी को पड़ती हैं। जिम्मेदार हम और आप हैं। जानवर ज़बह करने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले अपने बुरे नफ्स को ज़बह करिए, अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करिए, अपने नाक की नकील को, अपनी बागडोर को मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले करिए। आपको अपना उसवा बनाइए, नमूना बनाइए, आइडियल बनाइए, आपकी जिंदगियों को अपनाइए, नमाजों की पाबंदी करिए, सूदखोरी से बचिए, और इसी तरह से शादी ब्याह में सादगी को अख्तियार करिए। ये सारी चीजें अगर आप और हम कर
जानवर ले जाते हैं, आप एक छोटा सा बच्चा भी जो कुर्बानी के जो शुरू तो ज़वाबित हैं, अगर उसको वो पूरा पहुंचता है, अल्लाह की राह में आप कुर्बान करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशक आपकी कुर्बानी को कबूल करेगा। लेकिन आपके ज़िंदगी में, आपके अमल में अगर ये नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी है, नबी की नाफरमानी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को जैसे गुजारा, इस्लाम के लिए जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उसके बिलमुखालिफ आपकी ज़िंदगी गुजर रही है। आप एक नहीं 100 जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दीजिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और भी यहाँ इंदौर के बारे में तो अभी कल परसों मैंने एक बात और सुनी है कि कुर्बानी का जानवर 5-6 दिन जब बचता है कुर्बानी करने में, तो जो इलाके के लड़के होते हैं किसी एक जगह उस जानवर को ले जाकर के आपस में लड़ाते हैं, आपस में जानवर को लड़ा रहे हैं एक दूसरे से। अगर ये रियाकारी नहीं है, ये दिखावा नहीं है कि मेरा जानवर तुम्हारे से ज्यादा ताकतवर है, मेरे वाले का सींग तुमसे ज्यादा बड़ा है, मेरा इतने का है तुम्हारा कितने का है, मेरे में इतना गोश्त निकलेगा तुम्हारे में कितना निकलेगा, और उस पर फख्र करना, अगर ये रियाकारी नहीं है तो फिर रियाकारी क्या है? और अगर आपके घर के अंदर, आपकी औलादों के अंदर, आपके बच्चों के अंदर ये चीज पाई जा रही है, आप देख रहे हैं और आप रोक नहीं रहे हैं, आप भी मुजरिम हैं। जितना आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी औलाद जितना मुजरिम है, उतना आप भी मुजरिम हैं, क्योंकि आप मसूल हैं, आप सरपरस्त हैं, आप निगरां हैं, आप निगहबान हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को उन बुरे करतूत से रोको जो अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी की तरफ आमादा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते के खिलाफ जाकर के शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। वक्त खत्म हो चुका है, मैं अपनी गुफ्तगू भी खत्म करता हूं। बस आखिर में 2-3 लफ्जों में मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूं कि कुर्बानी बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अजीम इबादत है, लेकिन आपकी कुर्बानी तब कबूल की जाएगी जब आपकी कुर्बानी में इखलास होगा, जब आपकी जिंदगी अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पर गुजरेगी, आप नमाजों के पाबंद होंगे, आप कुफ्र और शिर्क और बिदअत और तमाम चीजों से बच रहे होंगे, आप अपनी तिजारत के अंदर सूदखोरी नहीं कर रहे होंगे, आप मजलूमों का हक मार कर नहीं बैठे होंगे, आप अपने पड़ोसी के माल पर कब्जा करके नहीं बैठे होंगे, आपने अपने भाइयों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके नहीं बैठे होंगे। आप अगर कहीं के मालिक हैं, किसी कंपनी या फैक्ट्री या किसी दुकान के, आपके यहाँ जो काम करने वाला मजदूर है, आप उसकी 2-3 महीने की सैलरी खा करके बैठे हैं और समझ रहे हैं 10 लाख का 2 लाख का बकरा कुर्बान कर दिया, अल्लाह कबूल कर लेगा। नहीं, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि जो उसका हक है, जो आपके यहाँ मजदूर करता है, उसकी मजदूरी की अदा करिए, और इन सारी चीज़ों को आप अपनाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कुर्बानी को कबूल करेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन मुझे, आपको, हम तमाम मुसलमानों को जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान और अमल सालेह के साथ जिंदा रख। अल्लाह हमारी ज़िंदगी, हमको जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, अल्लाह हमें ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख, हमारा खात्मा हो इस ईमान, उस अकीदा, उस मनहज पर हो जिस पर मरने वालों के लिए तो निजात का वादा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर अगर फितना और फसाद हो, रियाकारी और दिखावा हो, तो अल्लाह हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, तुझसे फरियाद करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को, तो अल्लाह हमारे दिलों के अंदर इखलास पैदा कर दे, तकवा पैदा कर दे, पाकीज़गी पैदा कर दे, तहारत पैदा कर दे। अल्लाह तू अल हई है, तू कय्यूम है, तू रहमान है, तू रहीम है, तू गफूर है, तू गफ्फार है, तू सत्तार है। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारा नाता मस्जिदों से जोड़ दे, हमको नमाज पढ़ने वाला बना दे, हमको रोज़े रखने वाला बना दे, अपने नबी की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल करने वाला बना दे, आपको उसवा, नमूना, आइडियल और खुदवा मानने वाला बना दे। अल्लाह जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह उनकी बीमारी और परेशानी को तो दूर कर दे, जो मखरूज हैं उनके कर्ज की अदायगी की सूरत पैदा कर दे। जो भी मुसलमान भाई हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनके कब्रों को तो जहन्नम के आग के बजाय अल्लाह तो जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, उनके कब्रों को तो कुशादा कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। It's Al Fajr Educational Foundation presentation.